Namaskar दोस्तों. With few more important economic indicators, today we are going to continue with our macroeconomic indicators series. आज हम कुछ और important indicators देखने वाले हैं, तो सेशन कंप्लीट देखना. आपको आज कुछ और important concepts सीखने को मिलेंगे. तो चलिए आज का काम शुरू करते हैं. सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पार्ट 1 में अपन ने कौन से indicators पढ़े. तो पार्ट 1 में we looked at PFC, Private Final Consumption Expenditure, Gross Fixed Capital Formation, GFCF, Government Final Consumption Expenditure, GFCE, Government Net Tax Revenues, Capital Expenditure, CapEx, Fiscal Deficit, and Debt to GDP ratio. So ये सब अपन ने सेशन 1 में देखी. So today we are going to look at IIP, PMI, capacity utilization, tax to GDP ratio, and these remaining indicators we will be covering in the next lecture in part 3, so that this session doesn't become lengthy and heavy. So let's go. आज का अपन फर्स्ट इंडिकेटर देखते हैं IIP के साथ में. तो चलिए IIP की तरफ मूव करते हैं. So our first indicator of today is IIP, Index of Industrial Production. What is it? It is a measure of general level of industrial activity in the economy on a monthly basis. ठीक है. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का पूरा आउटपुट कैसा है, कैसा आज की स्थिति है, वो कैसे पता चलेगा? IIP से पता चलेगा. And it is being used by various government institutions like Finance Ministry and RBI for their policy formation. तो नीति निर्धारण के लिए IIP का एक बहुत बड़ा रोल होता है. ठीक है. तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर. कैसे मेजर होता है IIP? सो IIP हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स अकॉर्डिंगली. फर्स्ट इज यूजर बेस्ड क्लासिफिकेशन, उसमें टाइप्स ऑफ गुड्स आते हैं, और सेकंड इज सेक्टोरियल क्लासिफिकेशन. तो टाइप्स ऑफ गुड में क्या है? 6 टाइप के गुड है. ठीक है. तो 6 टाइप के गुड का अपन वेटेड अरिथमेटिक मीन लेंगे आउटपुट का, तो यू विल गेट index of industrial production. Clear? So what are those goods? Those goods are first primary goods. Okay, उसका वेटेज कितना है? 34.1%, सबसे ज्यादा. Second is consumer non durable, 15.3% उसका वेटेज है. Intermediate goods 17.2%. Consumer durables 12.8%. Infrastructure construction goods 12.3%, and last capital goods 8.2%. So if you will add up the weightage, you will be getting 100%, और उसका weighted arithmetic mean क्या होगा? IIP. Clear? Second, sectoral classification पे आते हैं. तो 3 sectors से मिलके IIP बनता है. What are those sectors? First sector is manufacturing, जिसका weightage बहुत ही बड़ा है, 77.6%. Okay, so it is a very important driver of IIP. Second sector है mining, 40.4% weightage. Electricity third, 8% weightage. So okay, again 100% weightage हो गया तीनों का मिला के. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, वो है एक शॉर्ट टर्म वेरिएशन दिखाता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में, जो कि एक बास्केट ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं, और ये एक शॉर्ट टाइम मेजर होता है अंटिल जो अपना मॉस्पी है वो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज या फिर नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स लेके आता है. ठीक है. और वो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, उसके 3-4 महीने के दौरान आता है. ठीक है. उसको समय लगता है. उस दरमियान क्या होता है कि IIP एक एक्यूरेट पिक्चर दिखाता है इंडस्ट्रियल आउटपुट का. ठीक है. फॉर पॉलिसी फॉर्मेशंस. लेट अस मूव फॉरवर्ड. तो आगे बढ़ते हैं. This is a line representation of IIP of last 3 financial years, FY 18, 19 and 20. So you can see that in FY 18 and 19, the IIP trend line was showing positive slope, which means industrial output was growing, although at very flip-flop growth rate. But in FY 20, trend line is showing negative slope, which is shown by green line.
That means industrial output has shrunk badly. So we can infer from this chart that for the last couple of years, demand of industrial goods is withered away slowly. This is not good signs in any sense. तो स्लो डाउन तो आना ही था. इससे आपको ये पता चलता है कि ये ग्रोथ रेट देखो आप, ये नेगेटिव में जा चुकी है, ये बहुत ही सबड्यूड रेट पॉजिटिव ग्रोथ रेट है. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लास्ट कपल ऑफ इयर्स बहुत ही खराब स्थिति में है. ओके, स्पेशली इन लास्ट 1 ईयर. चलिए आगे बढ़ते हैं अवर सेकेंड इंडिकेटर्स की तरफ, जिसका नाम है परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स, जो कि IHS मार्केट बनाती है, जो कि एक लंदन बेस्ड इंफॉर्मेशन फॉर्म है. ठीक है, परचेजर्स मैनेजर इंडेक्स PMI. तो ये भी IIP की तरह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है. ये मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विसेज दोनों के लिए निकलता है, और उसको अगर कंबाइन करेंगे तो कंपोजिट PMI निकलता है, जो कि क्या होता है, ओवरऑल इकोनॉमी का PMI होता है. तो इसमें क्या होता है, फिजिकल सर्विस होते हैं, मैनेजर्स को पूछा जाता है कि की बिजनेस वेरिएबल के लिए आपका परसेप्शन कैसा है आने वाले समय में. ठीक है, तो ये मंथ से पहले किया जाता है और मंथ के स्टार्टिंग में ही उसको पब्लिश किया जाता है. So PMI is also good indication of corporate earnings and closely watched by investors as well as bond markets. तो आजकल ये काफी ट्रेंड कर रहा है. इनफैक्ट IIB से भी ज्यादा ये आजकल ट्रेंड कर रहा है, और काफी इंस्टीट्यूट्स है. फॉर एग्जांपल RBI अपनी जो MPC मीटिंग होती है, उसकी प्रेस ब्रीफिंग होती है, उसमें IIP से ज्यादा PMI मेंशन होता है. ठीक है, तो ये काफी यूज होता है आजकल. इससे क्या फायदा है, इससे आप जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है उसके बीच में आप कंपैरिजन भी कर सकते हो. ये इंपॉर्टेंट चीज है. तो कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं या फिर कौन से क्वेश्चंस के बारे में पूछा जाता है मैनेजर्स को. मैनेजर्स को ये पूछा जाता है कि न्यू ऑर्डर्स के लिए आपका परसेप्शन क्या है. ठीक है, तो उसका वेटेज है 30%. आउटपुट कितना होगा, उसका वेटेज है 25%. एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या है, उसका वेटेज है 20%. सप्लायर्स डिलीवरी क्या है, स्टॉक्स परचेज क्या है, तो ये पूरा 100% वेटेज है. ठीक है, तो ये पूरा जो क्वेश्चंस है उसका परसेप्शन निकलता है, उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, और फिर ये नंबर पब्लिश किया जाता है. तो अगर नंबर 50 से ज्यादा है, 50 से प्लस है, तो क्या बोलते हैं कि क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है. और अगर 50 से कम है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो रही है, श्रिंक हो रही है. ठीक है, तो ये ऐसे इंडिकेट करता है. तो RBI MPC के द्वारा PMI इंडिकेटर बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होता है, एंड इट आल्सो गिव्स एन एडवांस इनसाइट इनटू IIP. तो एक एडवांस इनसाइट बताता है IIP का. चलिए आगे बढ़ते हैं. So you can see here from this chart that in April, which was a month during which national lockdown was in operation, PMI was at 7.2. तो आप देखिए कहाँ 50 है और कहाँ 7 है, तो कितना बुरी तरीके से ये श्रिंक हुआ है. तो जो कि एक स्वाभाविक बात थी, बिकॉज लॉकडाउन अनाउंस हुआ था. तो ये कंपोजिट आउटपुट इंडेक्स है, विच कंपोज्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विस. क्लियर. सो ये एक और न्यूज है जो बता रही है कि PMI मैन्युफैक्चरिंग का अप्रैल में 27.4 था और मई में 30.8 है. तो एक मैसिव कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मैन्युफैक्चरिंग PMI में, विच इज नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन. बहुत ही वरीसम पोजीशन में है. सर्विसेज PMI का आप हाल देख सकते हैं. अप्रैल में 5.4 था, जो कि रिकॉर्ड लो था, और मई में ये बढ़ के 12.6 था. तो आप देख सकते हैं सर्विसेज एज वेल मैन्युफैक्चरिंग की हालत बहुत खराब है. तो इसको इम्प्रूव करने की, इसको अपडेट करने की बहुत अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर की तरफ, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. So what is capacity utilization?
It refers to manufacturing and production capabilities that are being utilized by nation or enterprise at a given time. For example, मेरे पास में एक मशीन है जिसकी कैपेसिटी है 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की पर डे. ठीक है, दिस इज माय कैपेसिटी, बट व्हाट आई एम प्रोड्यूसिंग इज 50 यूनिट्स पर डे. तो मेरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना हुआ? 50%. Similarly, if I calculate for the whole nation means the whole number of machines which are there in nation, I will be getting what capacity utilization of a particular economy. तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? Capacity utilization is equal to actual level of output divided by maximum level of output. तो आपको ये बता दूं कि before COVID, so if I talk about financial year 18, 19, 20, our capacity utilization was approximately around 70%, and this needle was not taking off despite various attempts were made by government to increase it, like corporate tax cuts in FY20, but उससे हुआ कुछ नहीं. So ये फिगर क्या शो करता है? If this figure is more than 90%, that means capacity utilization is at good pace. अगर ये बहुत कम है, that means my existing machines are itself sufficient to cater to today's existing demand in the market. तो मुझे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं. और अभी ऐसा ही हुआ है, बिकॉज गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स को दे ही दिया है, बट उससे क्या हुआ? नया इन्वेस्टमेंट तो कुछ आया नहीं. इनफैक्ट ये नया इन्वेस्टमेंट श्रिंक हो गया, बिकॉज मार्केट में डिमांड ही नहीं है. कॉर्पोरेट ऐसा बोल रहे हैं. ठीक है, तो ये ऐसी प्रॉब्लम चल रही है. कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अप एट स्टील सीमेंट फर्म्स. तो अप्रैल के बाद में जैसे ही लॉकडाउन खुला, थोड़ा रूल्स रिलैक्सेशन हुए, तब सीमेंट और स्टील का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो अराउंड 60% के आसपास आया, बिकॉज पेंट अप डिमांड थी और कुछ अदर फैक्टर्स थे. उसके कारण क्या हुआ? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थोड़ा सा इंक्रीज हुआ एज कम्पेयर टू अप्रैल, जहाँ में क्या था कि फैक्ट्रियां पूरी तरह से बंद थी. चलिए आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड इंडिकेटर की तरफ, जो कि है टैक्स टू जीडीपी रेशियो. तो चलिए दोस्तों आते हैं टैक्स टू जीडीपी रेशियो पे. तो जैसे सुन के ही पता चल रहा है कि इट इज अ रेशियो ऑफ गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यूज डिवाइडेड बाय जीडीपी ऑफ अ कंट्री. तो टैक्स रेवेन्यूज में क्या क्या आएगा? इट विल कंसिस्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्सेस में क्या आ जाएंगे? इनकम टैक्स आ जाएगा और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स आ जाएगा. इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आ जाएगा? जीएसटी आ जाएगा. ठीक है. सो इफ आई टॉक अबाउट फाइनेंशियल ईयर 17, ग्रॉस टैक्स टू जीडीपी रेशियो था इंडिया का, वो था अराउंड 17.5%. ठीक है, उसमें से 11.5% सेंटर का था और बाकी का था वो स्टेट्स का था. ठीक है. तो व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्स टू जीडीपी रेशियो? इट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंट्री, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द गवर्नमेंट, richness of government exchequer. So why higher tax to GDP ratio is important? Because अगर गवर्नमेंट के पास में ज्यादा हायर टैक्स टू जीडीपी रेशियो होगा, मतलब उनके पास में ज्यादा रेवेन्यूज होंगे, ज्यादा टैक्स कलेक्शन होगा, मींस दे विल बी हैविंग मोर फंडिंग पावर, मोर फाइनेंशियल पावर. देन गवर्नमेंट विल स्पेंड दैट मनी ऑन सोशल सेक्टर, मिलिट्री, will contain fiscal deficit with the help of that revenue, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी. ठीक है, तो ये बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स है वो गवर्नमेंट चला सकती है. उससे क्या होगा? जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसको बूस्ट मिलेगा. ठीक है, तो आइडियल टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या होना चाहिए? इफ यू टॉक अबाउट यूएस, उसका टैक्स टू जीडीपी रेशियो है अराउंड 24%. If you talk about OECD nations, Organization of Economic Development and Cooperation, तो उनका एवरेज टैक्स टू जीडीपी रेशियो है अराउंड 34%.
तो यू कैन सी दैट जो डेवलप्ड कंट्री है उनका टैक्स टू जीडीपी रेशियो जनरली हायर रहता है एज कंपेयर टू डेवलपिंग नेशंस. ठीक है, तो इंडिया नीड टू पुश इट्स टैक्स टू जीडीपी रेशियो at least at around 20%. Tax GDP ratio plunges to 9.88%, lowest in 10 years. So it is a very bad news. What is the reason for this? Simple, the great Indian economic slowdown. तो जैसा कि मैंने बताया कि FY17 में ये रेशियो कितना था 11.5%. So you can see that the ratio has been constantly deteriorating. So this is not a good sign. अब गवर्नमेंट क्या करी, मजबूरी में अपना जो एक्सपेंडिचर है, मेनली कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है, वो कम करेगी, जिससे क्या होगा, नेगेटिव सोशल रिपरकेशंस होंगे. ठीक है, तो ये इंडिया के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए एक अच्छी बात नहीं है. तो यू कैन सी दैट जो डायरेक्ट टैक्स है वो कलेक्शन एक स्टडी रेट से नीचे गिर रहा है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्शन जो कि एक्सपेक्टेड था कि जीएसटी के आने में बाद में बढ़ेगा, एक बूम दिखाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ. एक मजेदार बात इंडिया के टैक्सेशन सिस्टम की ये है कि जो जीएसटी है, इनडायरेक्ट टैक्स है, वो टोटल टैक्स कलेक्शन का मोर देन 50% से भी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूट करता है, और जो कि डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स है या फिर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है, वो टोटल टैक्स कलेक्शन का लेस देन 50% कॉन्स्टिट्यूट करता है. तो जो इंडियन टैक्सेशन सिस्टम है, ये क्या है, रिग्रेसिव सिस्टम है, बिकॉज जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, बिकॉज जीएसटी होता है, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो रिग्रेसिव टैक्स होता है. रिग्रेसिव क्यों होता है, बिकॉज अमीर और गरीब एक ही रेट पे चीजों पे टैक्स देते हैं. आइडियली क्या होना चाहिए, जितनी ज्यादा इनकम होनी चाहिए उतना ज्यादा टैक्स होना चाहिए. तो एक टैक्सेशन क्या होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, जो कि डायरेक्ट टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है. तो आइडियली इनकम टैक्स क्या होना चाहिए, एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल टैक्स कलेक्शन ज्यादा होना चाहिए, मतलब मोर देन 50% होना चाहिए. ठीक है, तो ये उल्टी सिचुएशन है अपने यहाँ पे, तो उसको अपन को सीधी बनाने की जरूरत है. टैक्स टू जीडीपी रेशियो के साथ में ही हम इस सेशन को यहाँ पे समाप्त करेंगे. होप आपको कुछ आउटपुट मिला होगा इस सेशन से, इस कंसेप्ट से. इन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 3, वी विल बी लुकिंग एट सम मोर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स. अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सेशन को लाइक